Good evening, everyone. Welcome to the Hindu session of 11th of August. In today's session, we'll talk about two news. One is regarding UNCLOS. There was an editorial on United Nations Convention on Law of Seas. So UNCLOS के बारे में थोड़ा बात करेंगे. And second was regarding undermining the justice. So this was regarding appointment of judges and you can say people in tribunal. ये वो वाला न्यूज था. So दूसरा अपन इस न्यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? So in this we'll see appointment of judges as well. In this we'll see the history of UNCLOS. What exactly is the work? वैसे हमने किया हुआ है in the classes, but one revision will be there. And then we have news in short. ठीक है? Okay. Good evening. Hello everyone. Okay, chalo. So let's start with the first news, that is regarding UNCLOS, United Nations Convention on Law of Seas. So this is UNCLOS is related now. This UNCLOS was started. It was mainly why it is in news, that we'll also see. This was in news mainly because of this convention was being not followed. This convention is mainly there. See, there are different coastal lines or coastal areas around different countries. So India is also having Indian Ocean, or you can say this Arabian Sea or Bay of Bengal around India. So in Bay of Bengal or in Arabian Sea, from our coastline, kitne area tak we are having our territory, or kitne area tak we can make laws, or what is our responsibility in this particular region. And if anyone comes and intervenes in our area, or we go and intervene in someone else area, or there are two countries which are placed very close to each other in the ocean and they are facing some problem. कल ही हमने बात की थी regarding UNCLOS when we talked about China's issue, right? China का जो 9- line है, या फिर ये हमने जो South China Sea का issue देखा था, there is violation of UNCLOS. So if there is such close placement of the countries, वहाँ पे भी इन countries को you can say demarcate करना, what is the area of one country and what is the area of second country, that is also work of UNCLOS. तो United Nation के अंदर ये बनाया गया कि इससे पहले भी कुछ कन्वेंशन हुआ करते थे regarding the same issue, but उन सबको खत्म करके there is creation of UNCLOS, which is comprehensively under 2-3 agreements. They are solving this issues कि कितना border में कितने कौन से कंट्री का कितना एरिया होगा, if there are close placement तो किसकी border कितनी होगी, या फिर if there is any dispute in this ocean water, then there is ITLOS जो ट्राइब्यूनल वगैरह है जो इसके केसेस रिजॉल्व करता है, ठीक है? So this is there. Now let's go in the details. Now news में इसलिए था because recently मोदी जी was there, है ना? जब यूएनएससी की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास चल रही है तो एक डिबेट हुआ था रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी. इन दैट ही टॉक्ड अबाउट रिस्पेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ यूएनसीएलओएस, और यू कैन से एक्सेप्टिंग द डिसीजंस और फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ यूएनसीएलओएस व्हिच मेजरली यूएसए, चाइना, रशिया, दीज कंट्रीज आर नॉट फॉलोइंग. तो उनको लेके ये बात आई थी उसमें. So UNCLOS is international treaty which was adopted and signed in the year 1982. It replaced the 4 Geneva Conventions. There were earlier Geneva Convention of April 1958, which respectively concerned about the territorial sea, the contiguous zone, the continental shelf and high sea, and fishing and conservation of living resources in the high sea. तो एरिया में, है ना, ओशन में कैसे कैसे रिसोर्सेस किसके अंदर डिमार्केट होंगे, डिवाइड किए जाएंगे, उसके ऊपर था ये. Then the convention has created 3 new institutions on international scene. First is ITLOS, that is International Tribunal on Law of Seas. तो ये ट्राइब्यूनल बना हुआ है. इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट और इशू होता है तो वो ट्राइब्यूनल के थ्रू रिजॉल्व किए जाते हैं. Then second is International Seabed Authority, which is called as ISBA also. Now this seabed authority का काम क्या होता है? The work of this international seabed authority is, seabed में there are lot of resources, natural resources are there, fisheries है, या फिर oil and natural gas है, या बाकी resources भी है. तो इन सारे resources को explore करना, ठीक है? इन सारे resources को explore करना, कौन कितने रिसोर्सेस यूज कर सकता है वो डिसाइड करना, या फिर इफ एनी कंट्री लाइक इंडिया वांटेड टू एक्सप्लोर सम ऑयल एंड नेचुरल गैस इन हाई सी, और यू कैन से थोड़ा इंडिया से दूर जाके, तो उसकी परमिशन देना किसी कंट्री को. सो दिस वाज अंडर आईएसबीए.
Then there is the commission on limits of continental shelf. Continental shelf is जैसे ओशन खत्म होता है, सॉरी ओशन स्टार्ट होता है, लैंड इज गेटिंग ओवर, सपोज ये इंडिया है, यहाँ से लैंड खत्म हो रहा है, ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहला वाला सबसे इनिशियल एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड दैट एरिया इज मेजरली हैविंग रिसोर्सेस, उसी में रिसोर्सेस, फिशरीज, ये सब चीजें सबसे ज्यादा होती है। तो इस एरिया में कौन सी कंट्री का कितना कंट्रोल होगा, कितना कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसका आता है, उसके लिए देयर इज कमीशन ऑन सेटिंग अप लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये तीन मेन एग्रीमेंट किए गए थे। इट बिकेम इफेक्टिव इन द ईयर 1994 एंड ईयर आफ्टर गुयाना बिकेम the 60th nation to ratify the treaty. तो 1994 में 60th nation हो गया to ratify this, और after this ये you can say binding हो गया या फिर माना गया। The convention resulted from the third UNCLOS United Nation Convention Law of Seas 3 which took place between 1973 to 1982। तो बहुत सारे UNCLOS 1, 2, 3 हुए थे, सारे 1, 2, 3 हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो we are not required to जस्ट कैमरा थोड़ा सेट करना है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर ऑल द 3 UNCLOS, तीनों के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। 1956 फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज हुआ था UNCLOS इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। दिस लेड टू 4 ट्रीटीज जो हमने पहले देखी थी, है ना, जो पहली ट्रीटीज थी, थोड़ा उल्टी साइड घुमा दिया मैंने, ठीक कर देता उसको। सो ये पुरानी ट्रीटीज थी। Then in 1960, United Nation held a second conference on which created United Nation Conference on Law of Seas. UNCLOS number 2 was there. UNCLOS number 2 was there. After this, however, the 6-week Geneva conference did not result in any new agreement. इससे कोई नया agreement नहीं हुआ, नया agreement नहीं हुआ। कोई नहीं, अभी स्क्रीन को और ठीक कर रहा हूँ। अभी ठीक करते हैं। Sir, when the US warship recently entered in Indian Marine illegally, yes, that was violation of UNCLOS, ना? ठीक है, हाँ कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। थोड़ा लैग होता है ना, तो पता नहीं चलता, वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। ये किधर मूव कर रहे हैं भाई साहब देखने के लिए। परफेक्ट, नाउ आई थिंक इट्स फाइन। अब कुछ मिस नहीं हो रहा है, उधर का भी सब दिखाई दे रहा है। ग्रेट, चलो। सो UNCLOS 1 हुआ था। UNCLOS पहला हुआ था इन 1956 और दूसरा हुआ था इन 1960। पहला होने के बाद जो पुराने कन्वेंशन से वो आए थे, देन देयर वाज सेकंड UNCLOS, नाउ थर्ड UNCLOS, जिससे अभी जो हम आज की डेट में देखते हैं वो सब आया था। सो 1973 देयर इज थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज कन्वीन्ड इन न्यूयॉर्क। तो तीसरा याद रखना, जहां से ये सब बना है वो न्यूयॉर्क में हुआ था। It attempted to reduce the possibility of groups of nation state dominating and negotiations. The conference used consensus process rather than voting. तो consensus that means सबका agreement होना चाहिए। Similar system of voting is used in WTO. WTO में भी voting नहीं होती, consensus होता है। That means सारी countries एक साथ मान जाए, agree करे, चलो ठीक है, ये ठीक है, तभी वो decision लेते हैं, उसके पहले नहीं लेते। With more than 160 nations participating, the conference lasted till 1982. तो ये चलती रही, हर साल थोड़ा बहुत कॉन्फ्रेंस होता रहा, कुछ डिसीजन लिए गए। The convention introduced number of provisions. The most significant issues covered are setting the limits of navigation, then archipelago status, then transit regime, transport कहाँ से होगा, exclusive economic zones कौन से होंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, सी बेड माइनिंग, अगर आपको सी बेड में कुछ एक्सप्लोरेशन करना है तो वो क्या होगा, द एक्सप्लोरेशन exploitation regime, protection of environment also, this is also important, then scientific research and settlement of the disputes। तो ये सारी चीजें की गई। तो इसमें हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कैसे लैंड और यू कैन से वाटर को डिवाइड किया गया था, पहले भी बता चुका हूँ। सपोज दिस इज ओशन, है ना, ये ओशन है एंड दिस इज लैंड, है ना, ये लैंड है। तो ये थोड़ा अनड्यूलेटिंग कर देते हैं, चलो, ये है आपका लैंड, इधर है लैंड, एंड सपोज दिस इज ओशन, यहां से आगे ये ओशन है।
नाउ इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट दे डिमार्केट वन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, एंड इसके अंदर, इस इमेजिनरी लाइन के अंदर जितना भी पानी है इस साइड, दिस वाटर इज कॉल्ड एज इंटरनल वाटर, इसको बोल देते हैं इंटरनल वाटर्स। तो ये इंडिया के इंटरनल वाटर्स हो गए, यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया के इंटरनल वाटर्स हो गए। आफ्टर दिस, फ्रॉम दिस इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड एज बेस लाइन, जो ये बेस लाइन होती है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, दैट इज 12 नॉटिकल माइल, डिस्टेंस नॉटिकल माइल में काउंट किया जाता है, अराउंड 22 किलोमीटर के आसपास होता है 12 नॉटिकल माइल। 22 किलोमीटर का रीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इंडियाज टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल नाम यूज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी, यहाँ पे इंडिया का लॉ ऑफ द लैंड चलेगा। So out of this 12 nautical mile, or you can say in this 12 nautical mile, 22 kilometers from the baseline, the coastal state, that means suppose India अगर है यहाँ पे, is set to make laws regulate use and use of any resources। तो यहाँ पे पूरा इंडिया का लॉ ऑफ लैंड चलता है in this particular region, ये जो 12 nautical mile है। From here next 12 nautical mile, अगले 12 nautical mile जो है इसको बोला जाता है contiguous zone और contiguous zone। This is called as contiguous zone or contiguous zone। Beyond 12 nautical mile, another 12 nautical mile, that is 22 किलोमीटर से अगले further 12 nautical mile from the territorial sea base limit is called as contiguous zone। तो ये हो गया आपका contiguous zone। Here the state can continue to enforce laws in 4 specific areas। तो 4 इंडिया के लॉज यहाँ पे चलेंगे, laws of customs, taxation, immigration and pollution, laws of custom, taxation, immigration and pollution। And if there is an infringement started or is about to occur within the state's territory or the territorial water, this makes the contiguous zone the area of hot pursuit। that means अगर कोई क्राइम कमिट करता है, अगर कोई हमारे जो टेरिटोरियल सी है यहाँ पे, यहाँ तक अगर कोई क्राइम कमिट करता है और उसके बाद भागने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ा जा सकता है ये 12 नॉटिकल माइल तक। कंटिगियस जोन इज द एरिया ऑफ हॉट परसूट। आपने देखा होगा गेम बचपन में खेलते होंगे, है ना, आज भी खेलते होंगे, नीड फॉर स्पीड, हॉट परसूट। हॉट परसूट क्या होता है, पुलिस आपके पीछे लगी होती है, तो ये हॉट परसूट वाला रीजन है जहां पे आप कैच कर सकते हो अगर कोई क्राइम कमिट करके भाग रहा है तो। So this is contiguous zone और 4 specific areas में we can make laws for the contiguous zone। The next is EEZ, that is exclusive economic zone। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए होता है। This is from the baseline, ये जो baseline बनाई गई है, इस baseline से 200 nautical mile, इस baseline से 200 nautical mile from the baseline। baseline याद रखना, not from the contiguous zone जहां पे एंड होता है, baseline से यहां से हम लेंगे 200 nautical mile is considered as country's EEZ, that is exclusive economic zone, 370 kilometers from the baseline। within this area coastal nation जो इंडिया है यहाँ पे has a sole exploitation rights over all the natural resources। तो हमारा law of the land तो नहीं चलेगा, our laws will not be there, but if there is any natural resource we can explore that, oil, natural gas or anything, fisheries वगैरह, we are having all the rights to do everything here। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है उस पे पूरा इंडिया का हक रहेगा EEZ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, या GTA वाइस सिटी में भी होता है ना। इरिका लेक्सी केस में क्या हुआ था, ऐसे बोला गया था कि इन्होंने क्या किया है, क्राइम इन्होंने टेरिटोरियल सी में किया है और इनको पकड़ा भी कंटिजियस के आसपास गया था। इधर से इनको ढूंढ के हम लेके आए थे कि इन्होंने इधर क्राइम करके ये भाग गए, ऐसा बोला गया था। ठीक है, ओके, चलो देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इनसाइड द आर्टिकल। अभी ये न्यूज में क्यों आया UNCLOS, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी took a stage to address the UNSC debate in the on maritime security
the first Indian premier, or you can say prime minister, to do this. He might have hoped to keep the focus on discussion on building maritime ties and developing maritime infrastructure through regional cooperation. लेकिन वो discussion अब debate थी तो वो shift कहाँ हो गई? वो shift हो गई towards maritime security. ठीक है कि कौन वायलेट कर रहा है यूएनसीएलओएस को, कौन उनके डिसीजन नहीं मानता, उस तरह वो शिफ्ट हो गया. Yes, yet once more the discussion veered towards major nation trading hubs and continuing strategic dissonance in the sphere. तो जैसे यूएसए इंडिया में आ गया, चाइना यूएसए के आसपास चला गया, या फिर यूएसए साउथ चाइना सी में चला गया, ये सारे इश्यूज. At the heart of the strident, the claims and the counter claims regarding abuse of maritime resources and disrespect of the territorial sovereignty rights of nations, where the US on the one hand and China and Russia on the other hand. अच्छा, वो मैप में और एक चीज याद रखना, जैसे कि बेसलाइन थी, बेसलाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल के बाद देयर वाज स्टार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे हमारी टेरिटरी खत्म हो जाती है. जहां हमारी टेरिटरी खत्म होती है वहां से इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाते हैं जहां हमारी टेरिटरी खत्म होती है. और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल वाज देयर, जहां पे ईईजेड खत्म होता है. जहां ईईजेड खत्म हो जाता है वहां से आगे हाई सी स्टार्ट होता है. जहां ईईजेड खत्म होगा वहां से आगे हाई सी स्टार्ट होता है. जहां टेरिटरी खत्म हो जाएगी वहां से इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो ये इशू जो है मोदी जी का कुछ बात करने का और था, ये कहीं और पहुंच गया. Indeed, the acceptance of UNSC of the legislative framework of UNCLOS, the legal framework applicable to activities in the ocean, including countering illicit activities at the sea, is seen as important achievement during India's month in the helm of council. तो हमने अच्छा काम किया है, और हमने कल भी पढ़ा था मोदी जी का इनिशिएटिव कॉल्ड सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना. तो उस इनिशिएटिव को भी यहाँ पे बात की गई. देयर आर स्ट्रेटेजिक बैरियर्स इन क्रिएटिंग मोमेंटम इन अचीविंग दीज गोल्स, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू दिस एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस. लास्ट चीज ये भी बोली गई कि यूएनसीएलओएस इज द ओनली थिंग दैट इज देयर रिगार्डिंग इंटरनेशनल वाटर्स. तो इंटरनेशनल वाटर्स में कोई लॉ अगर बना है तो वो यूएनसीएलओएस का ही बना है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. सो व्हाइल द सेम some may deride UNCLOS as lacking a teeth of enforcement, right? क्योंकि many countries ने इसको ratify नहीं किया है. Even countries like USA did not ratify this UNCLOS. So ultimately, it is the only comprehensive framework laws available to maritime powers to assert their rights consistent with the rules-based international order. So we have to remember UNCLOS is the only law. We have to make maximum countries participate in this and ratify this. Though its UNSC presidency and beyond, New Delhi must faithfully advocate ratification of UNCLOS by all the major maritime powers, including countries like USA, so that they can respect it. They can respect it और फिर issues नहीं होंगे. तो ये था overall issue. Second is undermining justice. Now this was in news because of delay in the appointments in judges, or delay in the appointments of you can say judges of tribunals by the government of India, because of which Supreme Court, or you can say judiciary, also took up a stance कि जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट होने चाहिए. क्यों डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड देयर इज रिजल्ट, इट इज रिजल्टिंग इनटू डिले इन जस्टिस डिलीवरी टू आवर पीपल. तो इसमें हम पहले देखेंगे कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है इंडिया में, व्हाट आर द जजेस केस, एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाई इट केम इन न्यूज. सर इंडिया पाकिस्तान का ईजेड क्लैश नहीं करता है, बट वो इशू रिजॉल्व हो चुका है, वो उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है. हमारा क्लैश करता है ईजेड कुछ कुछ एरियाज में, लेकिन जो इन्होंने लॉज बनाए उसके हिसाब से हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें. ठीक है, या हंसिका आई प्लेड मे बी, अब नहीं खेलता है ना, बट एक टाइम आता है लाइफ में जब आप ये करते हो, तो आप भी कभी ना कभी होता ही है. कंटीजियस जोन, श्रुति इट इज कंटीजियस जोन मतलब जहां पे हमारे टेरिटोरियल वाटर खत्म होते हैं 12 नॉटिकल माइल. आफ्टर 12 नॉटिकल माइल नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल जो होते हैं, अगले 12 नॉटिकल माइल इज कॉल्ड एज कंटीजियस जोन. और इस एरिया के लिए यू कैन मेक लॉज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लाइक कस्टम, है ना, कस्टम है, टैक्सेशन है, इसके लॉज आप बना सकते हो. तो ये चीजें है.
चाइना इंटरनेशनल वाटर में बिलीव नहीं करता। हाँ, चाइना को लगता है सब अपना ही है ना। डजंट ईजेड ऑफ कंट्रीज क्लैश विद, यस दे क्लैश विद वन अदर, दैट्स व्हाई देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन ना। सिर्फ देयर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, जब जहां जहां ईजेड क्लैश होता है तो वहां पे यूनाइटेड यूएनसीएलओएस कम्स इन एंड उन दो कंट्रीज के बीच में एमिकेबली उसको रिजॉल्व कर देता है कि किसका कितना होना चाहिए था। ठीक है, एससीजेड पूरा अलग कंसेप्ट है का। एससीजेड तो कहाँ पहुंच गया, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो लैंड पे होते हैं, वो वहां पे एक्सपोर्ट के लिए कंपनीज बनाई जाती है, वो एससीजेड अलग हो गया पूरा। ठीक है, इंडिया पहले पहले रेटिफिकेशन में ही था, जब जब लिया गया था ना, उसके बाद ही हमने तुरंत विद इन अ ईयर वगैरह रेटिफाई कर दिया था 94। नो, ऑल द कंट्रीज डू नॉट फॉलो सर, दे गेट अपॉइंटेड बाय कॉलेजियम, राइट। हाँ कॉलेजियम है, लेकिन देखेंगे। Sir, that the issue of death of fishermen by two Italians that happened, ऐसा बोला जाता है। तन्वी, इंडिया क्लेम्स दैट हैपेंड इन द टेरिटोरियल रीजन, लेकिन हॉट परस्यूट हुआ था तो इनको हमने बहुत दूर जाके पकड़ा था। ठीक है, लेकिन हुआ वो कहते हैं, हम कहते हैं कि इट हैपेंड इन इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स। ओके, यस, केनिया, सोमालिया सब किया जाएगा। नाउ विल हैव दिस इटालियन मराइनर्स केस भी कवर करेंगे अपन कभी ना कभी, वो भी आएगा। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो याद रखना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम। तो कोलिजियम कैसे आया, क्या आया, वो देखेंगे। CJI is appointed by the president after consultation of with such judges of the Supreme Court and the High Court as he deems necessary। लेकिन जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड, तो अगर CJI अपॉइंट करना है तो कंसल्टेशन करना होगा, कुछ जजेस को ऐसा बोला जाता है। Other judges are appointed by the president after consultation with Chief Justice of India and such other judges of the Supreme Court and the High Court as he deems necessary. The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of a judge other than Chief Justice। ठीक है, चीफ जस्टिस के अलावा किसी और के अपॉइंटमेंट में सीजेआई को आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। सीजेआई के लिए, सीजेआई को किसके कैसे कंसल्ट कर सकते हो, तो सीजेआई के लिए यू हैव टू कंसल्ट अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड जनरल ट्रेंड है ये कि वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं। नाउ 1950 से 1973 तक क्या सिस्टम था, ठीक है। सो विल मूव अहेड फ्रॉम 1950 एंड विल कम टू 2021। 1950 to 1973 the practice has been appointing the senior most judge of the Supreme Court as a Chief Justice of India was there. This established a convention. There was no rule. ये कोई rule नहीं था. It was a convention that was violated in 1973. तो इसका violation भी हुआ है. Senior most judge appoint नहीं हुए हैं कभी-कभी. It happened when there was appointment of A.N. Ray was appointed as Chief Justice of India by superseding 3 senior most judges। 3 senior judge थे इनके ऊपर उनको supersede किया गया 1973 में। Then 1977 M.U. Beg was appointed as the Chief Justice of India superseding the then senior most judge। एक जज इनसे senior थे तब भी। This discretion of government was curtailed, तो इसके ऊपर restriction आया by the Supreme Court in the second judges case in the year 1993। जब second judges case आया, first भी देखेंगे हम, don't worry। second judges case में in which the Supreme Court of India ruled that the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed as the Chief Justice of India। तो याद रखना Chief Justice of India Supreme Court के senior most judge होते हैं। ये किसमें बोला गया, it was said in the second judges case of 1993। ये second judges case में बोला गया था। Then evolution of collegium system। The Supreme Court like Chief Justice के अलावा बाकी लोगों के अपॉइंटमेंट में collegium कैसे आया, तो हमने अभी तक तो Chief Justice का ही देखा कि senior most कैसे बने, तो second judges case में बने। इसके अलावा appointment of other judges के लिए the Supreme Court's collegium system, how it came। The Supreme Court has given a different interpretation of the word consultation। इसी के अराउंड सारा कहानी चला है। Consultation and concurrence, two different things। Consultation might mean कि आपको बस पूछना है, and concurrence if the it means concurrence, that means you have to agree। दो लोगों को म्यूचुअली डिसाइड करना होगा, that means concurrence। एंड कंसल्ट करना मीन्स जाके किसी को आपने कंसल्ट किया, डॉक्टर को कंसल्ट करते हो लेकिन ट्रीटमेंट खुद लेते हो आप, राइट। और
कॉन्करेंस का मतलब होता है डॉक्टर के पास जाना, वो जो बोलेंगे वही दवाई खाना, दोनों ने एग्री करना है, कॉन्करेंस करना है, एक चीज पे डिसाइड करना है और उसको फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज कंसल्टेशन। तो ये कंसल्टेशन है या कॉन्करेंस है, इज दिस अ कंसल्टेशन और इज दिस अ कॉन्करेंस, इसके ऊपर डिबेट हुई है एंड फाइनली दिस इज रिजल्टेड इनटू अ कॉन्करेंस, ठीक है। सो इन द अबव मेंशन्ड प्रोविजन, when there was a first judges case of 1982, the court held the consultation does not mean concurrence। याद रखना, पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। Whereas in the second judge's case 1993, the court reversed its earlier ruling and changed the meaning of the word consultation to concurrence। इन्होंने क्या बोल दिया second judge's case में, आपको agree ही करना पड़ेगा। And in third judge's case, they said in 1998 the court opinion दिया that the consultation process should be adopted by the Chief Justice of India requires consultation of plurality of judges। तो यहाँ पे अब और इसको स्पेसिफिक कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट इज देयर, प्रेसिडेंट विल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कंसल्ट प्लूरलिटी ऑफ जजेस। दैट मींस 2-3 जजेस जो भी इन्होंने बताया सिस्टम कोलिजियम का, उन सब में कंसल्ट किया जाएगा एक दूसरे के साथ और फिर वो अपना नाम बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। सो इट इज नॉट ओनली कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट इट इज नाउ कंसल्टिंग प्लूरलिटी ऑफ जजेस। नाउ व्हाट इज दिस प्लूरलिटी ऑफ जजेस, वो भी हम देखेंगे। The sole opinion of Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges out of this 4 में से अगर 2 जज भी कहते हैं give adverse opinion regarding one person's appointment, he should not send the recommendation to the government। उसके बाद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। एक पर्सन है एबीसी, इस एबीसी पर्सन के लिए आउट ऑफ 4 जजेस का कोलिजियम, 4 जजेस के कोलिजियम में से 2 लोगों ने मना कर दिया, इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेशन। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर 4 जजेस को कंसल्ट नहीं किया, द प्रोसेस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अगर 4 जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं और फिर 3 लोग बोलते हैं कि हाँ नाम रिकमेंड कर दो, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम रिकमेंड करते हैं, देन गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर सकती है। अगर 2 ने मना कर दिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसल्ट नहीं किया 4 जजेस को और सीधा नाम ट्रांसफर कर दिया, देन देयर इज नो नीड और नो बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट दैट पर्सन। And this system of plurality of judges is called as collegium. The collegium system is in practice since 1998। 1998 से लेके आज तक सर अब इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस किया जाता है। It is used for the appointment and transfer of judges in high courts and Supreme Court. Remember this, even in high court there is no mention of the collegium system either in the original constitution of India nor in the any amendments। तो ये कहीं भी constitution में mention नहीं है। collegium is not a constitutional body, ये आई है 3rd judges case से, constitution में इसका mention नहीं है। working of the collegium and NJAC। अब इसी के बीच में एक नया आ गया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वाज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। गवर्नमेंट वांटेड टू इंटरवीन इन दिस, गवर्नमेंट अपना खुद का इंटरवेंशन लानी चाहती थी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी वाज देयर, जुडिशियरी से ही अपॉइंट किया जाता था अगले जुडिशियल पर्सन को, राइट। सो इट वाज कोलिजियम ऑफ जुडिशियल पर्सन्स ओनली, देयर वाज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वांटेड टू हैव इट्स रोल, दैट्स व्हाई दे केम अप विद एनजेएसी। वो एनजेएसी को लेके आए थे लेकिन एनजेएसी वाज क्रैप्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोर्ट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और एनजेएसी को हटा दिया। नाउ व्हाट वाज एनजेएसी? The collegium recommends the names of lawyers or judges to the central government. Similarly, the central government also send some of the proposed names to the collegium. The collegium considers the names suggested by the government of India and then they finally resend the final list। तो वो क्या करते हैं, रीसेंड करते हैं फाइनल लिस्ट को। कुछ नाम सरकार से आते हैं, कुछ नाम जुडिशियरी से आते हैं, फिर उन पे डिस्कशन किया जाता है और जुडिशियरी फाइनल नाम सजेस्ट करता है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द process that was followed।
in collegium rescinds, if the collegium rescinds the same name, again the government has to give its assent to the names, but the time limit is not fixed. ये है flaw पूरे system का, यहाँ पे flaw है. Suppose there are 3 names which are given by government of India, 3 names on which this collegium was considering, total हो गए 6 names. कोलिजियम ने इसमें से गवर्नमेंट के 2 नाम क्लियर किए और अपने भी 2 नाम क्लियर किए और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या प्रेसिडेंट को ये 4 नाम सजेस्ट किए. इट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट बाइंडिंग और यू कैन से इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इनको 2 महीने में अपॉइंट करो, 4 महीने में अपॉइंट करो, 6 महीने में अपॉइंट करो. ये नाम 4 ले लेंगे और अपने पास रखे रहेंगे, इनकी रिटायरमेंट आ जाएगी, इनका अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा और कहानी खत्म हो जाएगी. देयर इज नो टाइम लिमिट दैट इज फिक्स्ड कि कितने टाइम में सरकार इनको अपॉइंट कर सकती है. ठीक है, लेकिन ये है कि इन 4 को ही करना होगा, इनके अलावा खुद से सरकार किसी को अपॉइंट नहीं कर सकती. देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच गवर्नमेंट विल अपॉइंट. सो दिस इज द फ्लॉ बिकॉज ऑफ विच देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज. इसकी वजह से क्या होती है, वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम. This is the reason that the appointment of judges takes a long time. Though the 99th Constitutional Amendment Act, that is NJAC 2014 में आया था, National Judicial Appointment Commission Act, was established to replace the collegium system for appointment of judges. And in this collegium, there was role of government as well. However, the Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional on the ground of involvement of political executive. There are 3 organs ना, judiciary, executive, है ना, judiciary is there, executive is there and तीसरा क्या होता है, government is there, right? तो ये 3 organs है. Now इन तीनों में there should be separation of power. इन तीनों में क्या होना चाहिए, separation of power. ठीक है, एक का काम दूसरे के काम में इंटरवीन नहीं होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज देयर which is required. जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस इज मस्ट. ठीक है, सो दिस जुडिशियरीज इंडिपेंडेंस में इंटरवेंशन था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और दिस एक्ट वाज इंटरवेंशन इन द वर्क ऑफ जुडिशियरी. दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन आ रहा था. दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड इसको स्ट्रक डाउन करने के लिए. इट वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. बेसिक स्ट्रक्चर गिवन इन द केशवानंदा भारती केस. आई होप आप सबको पता है व्हाट इज केशवानंदा भारती केस, है ना. केशवानंदा भारती केस में बोला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से अमेंड कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट शुड नॉट हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर. एक बेसिक फ्रेमवर्क बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक यू कैन से कह सकते हो ना, आपका इसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस इसेंस को आपको खराब नहीं करना है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर को आपको खराब नहीं करना है. एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ऑफ इंडिया इज द इसेंस और यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यहाँ पे वायलेट हो रहा था. दैट्स व्हाई दिस कोलिजियम सिस्टम को अपहेल्ड किया गया और एनजेएसी को स्ट्रक डाउन किया गया. ठीक है, ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर है. नेक्स्ट इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. यस, दिस इज लाइक पॉकेट वीडियो. सो व्हाट अबाउट एनजेएसी आफ्टर कोलिजियम सिस्टम. एनजेएसी तो हट गया ना, सही रहा, अब क्लियर हो गया. ठीक है, सीजीआई में जो उनको लगता है कि जिनको कंसल्ट करना चाहिए उनको कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अब कंसल्ट का कुछ सीन बचा ही नहीं. आफ्टर सेकंड जजेस केस के बाद इट इज नेसेसरी कि उनको सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ वैभव ऐसा ही है. यूएसए क्या बोल सकते हैं. So does the contiguous zone falls in the international water or the territory of India? It is in the international water चला जाएगा ना, लेकिन कुछ एरियाज है, कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे हम लॉज बना सकते हैं उसमें. ठीक है, हमारी टेरिटरी खत्म, वहां से इंटरनेशनल स्टार्ट.
चिरयू जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, मैं भी 20 तारीख से 20 अगस्त से वो डेली बेसिस पे आने लगेंगे, ठीक है। So doesn't it imply that the judge for whose name the collegium is made will also be a part of collegium as he will be a part of top 4? For Chief Justice of India there is no collegium system ना, Chief Justice of India के लिए तो collegium है ही नहीं, वो तो by default second judges केस के बाद आपको senior most judge को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, उसमें तो कोई collegium का सिस्टम ही नहीं है। collegium है बाकी लोगों को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लिए, ओके। Sir, is the government bound to select same person who was selected by government? Yes, गवर्नमेंट खुद से किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकती ना, बट द प्रॉब्लम इज टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम में अपॉइंट कर सकते हो। नाम आ जाएंगे उनको ही अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन कितने टाइम में करना पड़ेगा ये नहीं है। उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी, अपॉइंट ही नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हो, उसमें कोलिजियम कुछ नहीं करता। राइट राइट अक्षत, करेक्ट। यस अवनी। हाँ अनुष्का, शायद क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अब जुडिशरी का हो ही रहा था तो मैं सोचा ये भी ले लेते हैं। दिस जस्टिस रिपोर्ट इज ऑफ 2020, इट वाज रिलीज्ड इन 2021, जनवरी 2021 में आई थी ये रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट हाउ जुडिशियल सिस्टम और यू कैन से प्रिजन और पुलिस इज वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट का कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट एडिशन वाज स्टार्टेड इन 2019। इट इज प्रिपेयर्ड बाय टाटा ट्रस्ट, मेनली टाटा ट्रस्ट है इन कोलैबोरेशन विथ मेनी मोर। ये सब नाम वैसे भी याद नहीं रहेंगे, टाटा ट्रस्ट याद रखना। And this report assesses the capacity of various states like Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka to deliver justice to the people. Highlights of the report: report analyze expenditure, vacancies, representation of women and human resources, infrastructure, workload, इन सब चीजों को देखा गया। The overall ranking is a result of states ranking across the 4 pillars. 4 चीजें हैं, जुडिशियरी, पुलिस, प्रिजन एंड लीगल एड। इन 4 चीजों को कंसिडर किया गया है। महाराष्ट्र वाज रैंक्ड द टॉप मोस्ट अमॉन्ग 18 स्टेट्स। तो पहला आया है महाराष्ट्र इन बिग स्टेट्स, एंड उत्तर प्रदेश है ना, जहां मैं अभी खड़ा हूं, और महाराष्ट्र जो मेरा स्टेट है वो टॉप पे है, और जहां मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश इज एट द बॉटम, ठीक है। इट रिमेन्स लास्ट, उत्तर प्रदेश लास्ट था, महाराष्ट्र फर्स्ट था। इन स्मॉलर स्टेट त्रिपुरा वाज ऑन द टॉप। इसमें बॉटम इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, ना ही मुझे भी याद है, तो आपको याद रखना है। स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा वाज ऑन टॉप, फॉलोड बाय सिक्किम एंड गोवा। नाउ इसमें वुमेन रेशियो भी काउंट किया गया, ये वन ऑफ द हाइलाइट्स था, वुमेन का रेशियो जब चेक किया गया। तो इफ यू टॉक अबाउट पुलिस, देयर इज वन यू कैन से मजेदार चीज पता चली, बिहार लीड्स द state of 25 states with highest number of women police officers, 25.3%, but they are not officers, lower rank में है। अगर हम officers की बात करें तो officers category में there is I think Tamil Nadu is on top. The only state that have more than 20% women police is Bihar. The women account for only for 6.1% in the officer category, that means top rank, ऊपर वाली रैंक में। Tamil Nadu has the highest percentage of women officers, police officers, that is 24.8%. That means higher ranks में women सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। वैसे total women अगर पुलिस में देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा है। In judiciary, there is 29% judges in high courts across the country who are women. No state except Sikkim has over 20% women judges. ठीक है, तो याद रखना सिक्किम में ज्यादा है। 4 states, Bihar, Uttarakhand, Tripura and Meghalaya. Remember this. Bihar, Uttarakhand, Tripura and Meghalaya have no woman judge in their high courts. इनके इसमें कोई भी woman judge नहीं है। Social justice की अगर बात करें, Karnataka is the only state that meet the quotas of scheduled caste, scheduled tribe and OBC, both officers, cadre and constabulary. That means higher officer, lower officer में दोनों जगह पे
नंबर ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटा सिर्फ कर्नाटका में फुलफिल किए गए। छत्तीसगढ़ इज द ओनली अदर स्टेट दैट मीट्स द डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबलरी। तो इसमें भी हायर ऑफिसर नहीं, लेकिन जो लोअर ऑफिसर है वहां पे अपॉइंटमेंट अच्छे से होती है। लैक ऑफ फाइनेंसेस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। ये काफी ज्यादा न्यूज में भी आई थी जब ये रिपोर्ट आया था। In last 25 years, only 1.5 crore people have received legal aid by the central government. सरकार ने सिर्फ 1.25 करोड़ लोगों को ही सेंटर एड दिया है इन द केसेस। एंड अगर सरकार का स्पेंडिंग देखा जाए ऑन दिस यू कैन से फाइनेंसेस ऑफ लीगल एड दैट इज गिवन टू द पीपल, इट इज ओनली 1.05 रुपीज पर कैपिटा इन द ईयर 2019-20। तो अगर हम गवर्नमेंट ने जितना भी खर्चा किया है ऑन लीगल एड टू द पुअर पीपल और टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट इज कमिंग टू बी 1.05 रुपीज पर पर्सन। इससे ज्यादा खर्चा नहीं किया गया है अगर काउंट करें। हाई प्रोपोर्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स, दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू। जिन लोगों का वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है ना, जुडिशियरी में जिनके केसेस अभी भी फंसे हुए हैं, 2/3 ऑफ द पीपल आर अंडर ट्रायल्स, जिनको जेल की गई है। दे आर अंडर ट्रायल्स, इनका कोई वर्डिक्ट नहीं आया, कन्विक्ट नहीं हुआ, बट स्टिल दे आर इन जेल। 2/3 आर अंडर ट्रायल्स इन इंडिया। तो इनके वजह से ही इंडियन जो प्रिजन्स है वो भी काफी ज्यादा भरे हुए रहते हैं, ओवर पॉपुलेटेड। कॉजेस ढूंढे गए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइवन ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली हार्नेस लोक अदालत, है ना, जो हमारे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तरीके होते हैं वो उतने ज्यादा अच्छे से यूज नहीं होते। टू ईज द burden of judiciary, India has one judge for every 50,000 citizens, while each police person is responsible for safety of 850 लोग। ठीक है, नंबर काफी खराब है। 50,000 लोगों के पीछे एक जज है और 850 लोगों के पीछे एक पुलिस वाला है। Now why it was in news? Because Supreme Court has voiced a concern over the government's you can say lack additional attitude towards large number of vacancies in the high court as well as in tribunal। तो जुडिशियरी की तरफ से नाम तो सजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अपॉइंट नहीं हो पाते। Many tribunals lack presiding officers and recommendations made by the selection committee have not been acted upon। तो सिलेक्शन कमेटी ने तो नाम दे दिए, जुडिशियरी ने तो नाम दे दिए फॉर द हाई कोर्ट जज, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। देयर इज प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें दी गई है। द जुडिशियरीज कंसर्न ओवर द वैकेंसीज इज जस्टिफाइड आल्सो, क्योंकि बहुत ज्यादा है। इट अंडरमाइन द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल क्वाइट अपैरेंट एंड रिपीटेडली फ्रेमिंग द रूल्स दैट सीक्स टू प्रोवाइड द ग्रेटर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द टेन्योर। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल में ये भी होता है, जहां पे सरकार को अपॉइंट करने होते हैं तो सरकार का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है ओवर द ट्राइब्यूनल्स। ये कुछ इश्यूज बोले गए हैं। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो ये एक सजेशन दिया गया है, स्पेशलाइजेशन और डोमेन एक्सपर्ट्स को हायर किया जाए टू रिलेटिवली क्विकर जजमेंट आया जाए। लाइक कोई अगर जुडिशियल लॉयर, यू कैन से रियल एस्टेट के लॉयर है, कोई अलग अलग फील्ड के लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर में डाइवोर्स है या फैमिली डिस्प्यूट्स है उसके लॉयर है, तो उनको अलग अलग डोमेन वाले एक्सपर्ट हायर किए जाए तो जल्दी यू कैन से जुडिशियरी अच्छा काम कर सकती है। एंड टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन inexplicably reluctant to create a national body for appointments or you can say overseeing the work related appointment of the members of tribunals। तो एक सेंट्रल बॉडी भी होनी चाहिए जो हर जगह पे ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट को देखे और टाइमली अपॉइंटमेंट होना चाहिए। देन वी हैव न्यूज इन शॉर्ट। टुडे वी विल नॉट कवर न्यूज इन शॉर्ट। आज के और कल के न्यूज इन शॉर्ट कल की न्यूज में एक साथ कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर टुडे सेशन। जुडिशियरी में इस रिपोर्ट में एज सच कुछ याद करने वाली चीजें नहीं थी ज्यादा, या क्यों न्यूज में था, बस कंसर्न इतना था कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न आया है, उसकी वजह से आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज आपको दिस जस्टिस रिपोर्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज इस एडिटोरियल में एज सच कुछ था नहीं ज्यादा, लेकिन बैकग्राउंड में टॉपिक था पूरा, तो आई थॉट टू कवर दिस। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आज के वन लाइनर्स कल कवर किए जाएंगे, आज के और कल के दोनों मिला के वन लाइनर्स कवर करेंगे और एक हाथ न्यूज कवर कर लेंगे कल, ओके। इसके अलावा बाकी एडिटोरियल्स बहुत ही कॉमन चीजों पे थे। हाउ डू दे डिटरमाइन बिग एंड स्मॉल स्टेट्स? इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट को जनरली बिग स्टेट किया जाता है, वैभव, ठीक है। अलग अलग इसमें अलग अलग होता है, इसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन था।
ठीक है। लीगल एड मतलब सुना होगा आपने, सरकारी वकील जो लगाए जाते हैं वो होते हैं लीगल एड काइंड ऑफ। आपको सरकार की तरफ से वकील मिलता है आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। यस इट इज ईयरली बेसिस पे आती है, टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट। ओके चलो देन, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ एंड मैंने लगा लिए वैक्सीन के 2 डोज, आप भी लगा लेना है ना। जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर लो खुद को भी। आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड, यू ऑल्सो शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड नाउ। थैंक यू, सी यू, बाय, टेक केयर।